اور اگر عمران خان کو انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو عوام کا سمندر اسلام آباد میں گھسے گا اور ان کے پارلیمنٹ سے ان کو باہر پھینکے گا انشاءاللہ۔ بات سنیں، عمران خان جب پہلی بار ایم این اے بنے تھے تو اس حکومت نے جو سابقہ حکومتیں تھیں انہوں نے میاں والی کے فنڈز روک دیے تھے کہ لوگ تنگ ہوں گے عمران خان سے۔ سلام کرتا ہوں میاں والی کے لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ ہمیں فنڈز کی ضرورت نہیں ہے، جو لیڈر ہے ہمارا جو انتخاب ہے وہ لاجواب ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ میاں والی کے لوگ ہوں گے۔ لانگ مارچ تک مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ سب کو پتہ ہے کہ خان کی لانگ مارچ کی کال پہ بچہ نکلے گا اور خواتین اتنی نکلیں گی کہ تاریخ میں کبھی خواتین نہیں نکلی ہوگی لانگ مارچ میں انشاءاللہ۔ ہم خان صاحب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ ہمیں کال نہ کریں، ہمیں صرف مس کال دیں، انشاءاللہ ہم پہنچ آئیں گے۔ آپ کال نہ کریں، صرف مس کال کریں۔ ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، نیا پاکستان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا چاچا مجھے یہ بتائیں، آج ہم میاں والی میں موجود ہیں، عمران خان نے اپنی حقیقی آزادی کا آغاز میاں والی سے کر رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیڈر عمران خان کو تا قیامت زندہ پائندہ رکھے، اس کی اللہ تعالی عمر دراز کرے، اور حضور پیر سیال لجپال گجرات حضرت خواجہ محمد قاسم کے تھیالوی چیئرمین شمس و قمر فاؤنڈیشن آستانہ عالیہ خیال شریف، اللہ تبارک تعالیٰ ان کا بھی سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ آپ تشریف لائے ہیں، عمران خان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، آپ سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ میں عمران خان کو میاں والی کی غیور عوام کی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس لیڈر کو تا دیر قائم رکھے، آمین۔ آپ عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، عمران خان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ عمران خان نیازی اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش رکھے، ایک وید لیڈر ہے جو اسلام کا پرچار کرنے والا ہے اور ایماندار شخص ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ وہ ہمیں جس طرح زہر طور سے نظر آتا ہے، باطن طور پر بھی ہمیں اسی طریقے سے نظر آتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے مرشد کریم حضور پیر سیال لجپال گجرات اس کا ساتھ نہ دیتے، کیونکہ وہ ایک ایماندار شخص ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عمر دراز فرمائے۔ عمران خان امپورٹڈ حکومت۔ مجھے بتائیں عمران خان صاحب آج اپنے شہر میاں والی آ رہے ہیں، عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کا آغاز میاں والی سے کریں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ ہمارے خان کا جو ارادہ ہے حقیقی آزادی کا آغاز ہم میاں والی، عمران خان کا ہوائی علاقہ ہے، ہم سب میاں والی کے جتنے بھی شہری ہیں، جتنے بھی ہیں، عمران خان کی کال کا انتظار ہے ہمیں۔ ہم اسلام آباد کی طرف سے تحریک کا آغاز ادھر میاں والی سے کریں گے، اور ہم میاں والی تمام عوام عمران خان کو میاں والی کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ جو نا امپورٹڈ حکومت ہمارے پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، ہمیں یہ بالکل نامنظور ہے۔ ہم کبھی بھی اس امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کرتے، اور ہمارا عدلیہ سے یہ اپیل ہے، پرزور اپیل ہے کہ خدا را پاکستان ملک پہ کچھ خدا کا خوف کریں۔ یہ آپ نے رات 12 بجے اتوار کے دن عدالتیں لگائی ہے، کبھی ایسا پاکستان کی تاریخ میں بھائی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ خود سوچیں، یہ عوام کا سمندر۔ مجھے یہ بتا دیں، یہ کہا گیا کہ عمران خان نے توہین رسالت کی ہے اور اس کا مقدمہ درج کیا گیا عمران خان پہ، تو کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے۔ یہ سب پارٹیاں اکٹھی ہو کے عمران خان کا کچھ نہ کچھ یہ کہتے ہیں، ہم کر کے دکھائیں گے، ہم اس کو پکڑیں گے، گرفتار کر لیں گے۔ گرفتار کرنے کو تو دور کی بات ہے، عمران خان کو کوئی میلی آنکھ کی طرف اس کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر عمران خان کو انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو عوام کا سمندر اسلام آباد میں گھسے گا اور ان کے پارلیمنٹ سے ان کو باہر پھینکے گا انشاءاللہ۔ آپ عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم عمران خان کو
इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी एक कौम है और आज़ाद कौम है, हम किसी की ग़ुलामी नहीं करते। और जो जितने भी पाकिस्तान पे हुकूमतें आई हैं गई हैं, किसी ने भी पाकिस्तानी आवाम को इतना शऊर नहीं दिया जितना इमरान खान ने दिया है। एक सच्चा लीडर है, ना इसने इधर कोई कोठियाँ बंगले बनाए, ना कोई फैक्ट्रियाँ लगाई, ना बाहर जायदादें बनाई। हम इसी वजह से इमरान खान के साथ हैं और सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, आज इमरान खान आपके शहर और अपने शहर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे खान साहब के लिए? जी, खान साहब के लिए यही पैगाम है कि जिस तरह मियांवाली के लोगों ने हमेशा आपका साथ दिया है। पहली बार भी एमएनए बने थे तो मियांवाली के लोगों ने उन्हें मतलब एमएनए बनाया था और उन्होंने सियासत की इब्तिदा मियांवाली से की थी। आज जब उम्मत मुसलमान का एक मजबूत लीडर बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी इब्तिदा भी वो मियांवाली से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, इमरान खान ने हकीकी आज़ादी का कहा, हकीकी आज़ादी का आगाज़ मियांवाली से कर रहे हैं। कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं खान साहब? जी, आपको पता होगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। खान का कसूर ये है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का जो जंग लड़ी और दुनिया के सामने 15 मार्च को जो दिन पूरी दुनिया पर मनाया जाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से, तो मगरिब को दो चीज़ें हमेशा तकलीफ़ देती हैं। एक इस्लाम के लिए बात करने वाला, दूसरा डॉलर को पिछाड़ने वाला। खान ने मुस्लिम उम्मा के जितने भी मुल्क हैं सबको जब इकट्ठा किया, इस्लामी मुल्कों की करेंसी एक करने की जब बात की तो उनको ये बात नागवार गुजरी और इसीलिए उनको जो पाकिस्तान के अंदर जो साजिशी हैं, ये कौन है? ये जो नून वाले हैं, फजरमान है, या जितनी भी ये पार्टियां हैं, इनको उन्होंने इस्तेमाल करके साजिश की और फिर इनके ज़रिए मुदाखलत करा के उनकी हुकूमत को ख़ात्मा किया। तो यही मुदाखलत है और यही हम लोग चाहते हैं, पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद मुल्क है, किसी की मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करते। और ये इसीलिए निकल के आए हैं कि हम आज़ाद लोग हैं और हकीकी आज़ादी के लिए खान के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। आपने ये कहा कि हमने मियांवाली वालों ने इमरान खान को पहली दफ़ा एमएनए मुंतखब करके कौमी असम्बली में भेजा और उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म बने, ये जो सफ़र जारी रहा, आज फिर दोबारा मियांवाली उसी तरह खान के साथ है। बात सुने, इमरान खान जब पहली बार एमएनए बने थे तो उस हुकूमत ने जो साबका हुकूमतें थी उन्होंने मियांवाली के फंड्स रोक दिए थे कि लोग तंग होंगे इमरान खान से। सलाम करता हूँ मियांवाली के लोगों को, इन्होंने कहा कि हमें फंड्स की ज़रूरत नहीं है, जो लीडर है हमारा जो इंतखाब है वो लाजवाब है। इन्होंने फंड्स की परवाह नहीं की, हमेशा खान के साथ खड़े रहे और आज आप देख रहे हैं कि मियांवाली के लोग किस तरह निकले हुए हैं। ये उनको भूल है, ये ऐसा वज़ीर आज़म है, मियांवाली के लोगों को छोड़िए, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ निकला हुआ है अल्लाह के फजल व करम से। क्या समझते हैं, क्या वजह, किस वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं? जी, लोग इसलिए बाहर निकल रहे हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है। आप अपने चैनल को देखिए, लोग कितने सब्सक्राइब आपको दे रहे हैं, कितनी वीडियोस आपकी शेयर हो रही हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है। आज जितने भी न्यूज़ चैनल हैं खान को कवरेज नहीं दे रहे, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत ने खान को उभार दिया है। इसीलिए लोगों के अंदर शऊर है और जब शऊर आता है तो रेडी वाला भी कहता है। आज देखिए ना, फसलों के दिन है, मैं थ्रेशर पे गया हूँ तो वहाँ पे थ्रेशर भी काम भी कर रहे थे, कह रहे थे कि जी क्या हो रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत का, यानी कि मजदूर को भी पता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत है। और शऊर ये सोशल मीडिया ने दिया है और खान सच्चाई है और सच्चाई कभी छुपती नहीं है। मैं उन इदारों से कहता हूँ जिन्होंने खान को हटाया है, जिनका नाम लेते हुए लोग डरते हैं। पाक फौज के साथ लोग मोहब्बत करते हैं, पाक फौज भी इमरान खान के साथ है। एक शख्स अगर इमरान खान के खिलाफ है तो मुझे पता है पाक फौज के नौजवान और अफसरान खान से प्यार करते हैं, क्योंकि पाक फौज मुल्क की वफादार फौज है। एक शख्स जिसका नाम लेना चाहूँगा, बाजवा साहब ने अगर गलती की है तो पूरी फौज के नौजवानों के अंदर भी जज्बात हैं इन नौजवानों की तरह इंशाल्लाह। जी, मुझे बताएं, इमरान खान पे जो तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज किया गया, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? ये बात कई करने की है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में, मक्का में, मदीना में जाता है, जूते नहीं पहनता और उस पर तौहीन रिसालत की बात करते हैं, यही बात इनके गले में पड़ेगी। और राना सनाउल्लाह जैसे लोग जिनके जो कहते हैं कादियानी हमारे भाई हैं, आप
खुद कादियानियों की, मुझे तो वो मुसलमान अल्लाह करे मुसलमान हो नहीं लगता जो कहता है कादियानी हमारे भाई हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के बारे में नौज़-बिल्लाह वो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाए। मेरे इलाके के लोग गवाही देंगे कि इमरान खान एक सच्चा आशिक रसूल है, और आशिक रसूल वो इस तरह भी है कि उसने मुकदमा दुनिया के सामने लड़ा, ऐसी जगह पे जहाँ पर 15 मिनट का टाइम था, लेकिन 1.5 घंटा उसने तकरीर की, और उस तकरीर के दौरान 6 बार क्लैपिंग हुई, 6 बार तालियां बजी, पूरी दुनिया के वहाँ पे लोग बैठे थे। और ये लोग इस चीज़ की गवाही देंगे। आपने भी देखा होगा जूतों के बगैर मदीने में वो चलता है, और ऐसे शख्स पे तौहीन रिसालत की जो बात करते हैं वो खुद क़यामत के दिन इसका जो है ना वो अंजाम भुगतेंगे। जो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, ये जो 10 जलसे हैं इसके बाद लॉन्ग मार्च है, क्या मियाँ वाली के लोग वहाँ पहुँचेंगे? मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा मियाँ वाली के लोग होंगे। लॉन्ग मार्च तक मुझे नहीं लगता कि वो अपने पाँव पे खड़े होंगे। सबको पता है कि खान की लॉन्ग मार्च की कॉल पे बच्चा निकलेगा, और ख़वातीन इतनी निकलेंगी कि तारीख में कभी ख़वातीन नहीं निकली होंगी लॉन्ग मार्च में इंशाल्लाह। हम खान साहब को ये पैगाम देते हैं कि आप हमें कॉल ना करें, हमें सिर्फ मिस कॉल दें, इंशाल्लाह हम पहुँच आएंगे। आप कॉल ना करें, सिर्फ मिस कॉल करें। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान अपने शहर, आपके शहर मियाँ वाली आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे खान साहब के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना तारुफ करता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब के गाँव कट्ठा मसराल का नंबरदार हूँ, और हमने भरपूर तरीके से पीटीआई को सपोर्ट किया है। इंशाल्लाह आगे भी भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। इमरान खान एक सच्चा आशिक रसूल है, निडर लीडर है, पूरी दुनिया उसको मान रही है। अगर ये चोर उसको नहीं मारे तो ना माने, जन्नत में जाएं, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह इमरान खान की कॉल पे भरपूर तरीके से निकलेंगे। आप मुझे ये बताएं नंबरदार साहब, ये कहते हैं, नूली कहती है ये जो गाँव के लोग हैं, ये जो ज़मीनों वाले लोग हैं, ये हमारे साथ हैं। नहीं, कोई साथ नहीं है, चोरों के साथ नहीं है। हम सच्चे इंसान के साथ हैं, सच्चा लीडर है, मुखलिस है पाकिस्तान के लिए। ये तो सब कुछ लूट के ले गए हैं, क्यों नहीं बताते? अदालतें पूछ रही हैं कि बताओ किधर से बनी ट्रेल दो, इन्होंने दी है। आप क्या कहना चाहेंगे इमरान खान के लिए? इमरान खान इज़ द ग्रेट लीडर। हम दिल से उसकी जो है ना मोहब्बत करते हैं। ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत इसे कबूल नहीं करते आप? नहीं करते, बिल्कुल, ये बिल्कुल नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। बहुत शुक्रिया।